ओवर ईटिंग पार्ट 2 ਅੱਜ मैं हाजिर हाँ फिर दोबारा स्पैशली एक होर ओलंपिया सैलेब्रिटी दे नाल ते 4 टाइम मिस्टर ओलंपिया देखो वो की कहंदे हैगे ने। I don't think it's really changed. I think everyone over the years has, pushed the limits of what their physical makeup is. And I think that, you hear about the food amounts or the drugs or, you're trying to develop a body. I think guys tend to overeat more. And I think that's the most dangerous thing, honestly. दोबारा फिर ए देख लो की लिखिया है ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਉਹ ਉਰਦੂ ਚ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਓਵਰ ਈਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਡੇਂਜਰਸ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹਿੱਸਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਕਟਲਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ because that amount of protein ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ कि कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा क्यों खाते हैं और प्रोटीन जो है वो जे कटलर कम क्यों लेता था। Been in nutrition since 18 years old, and I never was a big protein eater. I was more of a carbohydrate eater. And I think that had a lot to do with why now at 45 I can continue to train with zero joint pain. ये बात जे कटलर ये बात कर रहा है कि कुछ लोग होते हैं जो प्रोटीन पे हाई प्रोटीन लेते हैं और लो कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं। उसके अंदर होता ये है कि जब आप हाई प्रोटीन लेते हैं तो जो हमारी बॉडी है वो जो है फैट से जो है एनर्जी लेती है। अगर आप जब आप ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे तो एनर्जी जो है हमारी वो कार्बोहाइड्रेट से जाएगी ना कि फैट से। फैट को सबको पता है कि फैट जो है आपकी रिकवरी में बड़ी हेल्प करती है। आपको चोट लग गई है या कोई जॉइंट में मसला आ गया तो उसको ऑटोमेटिकली वो रिकवर करती है। तो इसीलिए कह रहा है कि अभी तक मुझे कोई जो है जॉइंट पेन नहीं है ठीक है क्योंकि वो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लेता था वो ज्यादा लव करता था ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाने में। और मोस्टली मैं अपना भी बताऊं मैं भी ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पसंद करता हूं ना कि इतनी प्रोटीन। और मेरे बॉडी के अंदर भी अभी तक जो है स्पेशली जीरो पेन है कोई इंजरी नहीं है अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा काम है सिर्फ आपको बताना आगे हर बंदे का स्कूल ऑफ थॉट डिफरेंट है उसकी स्टडी डिफरेंट है ठीक है वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से गुजरा होता है तो हर बंदे का बिलीव है। मेरा काम सिर्फ ये है कि आप लोगों के सामने रखना कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है। अगर आप इसको को भी डिनाई करेंगे तो फिर आपका अल्लाह ही हाफिज है। Perfect limitations are, but you know what, I was a volume trainer. I never trained crazy heavy. I ate very, very well. I worked with a nutritionist since 18 years old, and I never was a big protein eater. I was more of a carbohydrate eater. जिन्होंने पढ़ना आंदा है स्पेशली इंग्लिश पढ़ सकते हो ठीक है। And I think that had a lot to do with why now at 45 I can continue to train with zero joint pain. I had an injury, of course, that knocked me out of the Olympia for my second to last year, but my body feels great. हर जिस्म की अपनी रिक्वायरमेंट होती है और अपना उसका जो है प्रोटोकॉल होता है। जैसे कि हर किसी को जरूरी नहीं है हर बंदे को जो है ये नहीं कह सकते कि आप स्टीरॉइड से हो सकता है ठीक है। कुछ लोगों को स्टीरॉइड से कुछ नहीं होता डाइट से हो जाता है स्ट्रेस लेवल से हो जाता है ठीक है उसके इर्द गिर्द का जो माहौल है उससे भी हो सकता है और कुछ लोगों को जो है वो डाइट से भी इशू हो सकता है। चले आगे देखते हैं आगे जे कटलर क्या कह रहा है। They are destined for body issues like hip issues, heart problems, cancers, whatever it is. I really don't think that I think some guys abuse drugs just like anyone as far as even the recreational side or smoking cigarettes to alcohol. We've seen it all. But to be honest, I mean, the guys that reach that elite level, especially at the Olympia level, are there for a reason. With or without drugs, they would still be somewhat more genetically inclined to do better.
And I think that there's a lot of misconception with the top guys using more stuff or doing more damage to their bodies than the guys that are lower level. स्पेशली लोग समझते हैं कि जो टॉप लेवल के बॉडी बिल्डर हैं या ओलंपिया लेवल के हैं या जो स्टेट लेवल के हैं, जैसे हम डिफरेंट मुल्कों में हम देखते हैं जहाँ जिस बंदे ने बड़ी अच्छी बॉडी अचीव की हुई है, वो समझते हैं कि कोई डिफरेंट टाइप का जो है ना स्टीरॉइड लेते हैं या इनका प्रोटोकॉल डिफरेंट है। भैया सारे इको तरह के इंजैक्शन लाते हैं जो लाते भी है ने, ठीक है। तो एक टाइमिंग डिसिपलिन, ठीक है, एक चीज नू हाई उस टॉप ते लै जाना कि क्रेजी बनना होंदा, बंदा पागल हो जाता कि यार मैं करके लै जाना। उनके पीछे जो जुनून होंदा ना, डिसिपलिन होंदा है कि यार मैंने इसको करना है, ठीक है। उसके अंदर जो डिसिप्लिन आ जाता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा स्टाफ लेता है 20 से 25 हज़ार रुपए का, उसमें जो डिसिप्लिन आ जाता है ना कि कल मैंने टाइम से उठना है, टाइम पे खाना है, टाइम पे सोना है, ठीक है, इतने बजे मैंने ये वाला इंजेक्शन लेना है, इतने बजे ये वाली प्रोटीन लेनी है, इतने बजे ये वाली मैंने टैबलेट खानी है। वो डिसिप्लिन जो है ना उस बंदे को वो उस लेवल पे ले जाता है कि बंदा कहता है यार हाँ ये कुछ जो है ना डिफरेंट स्टाफ कर रहे हैं। जैसे कि जे कटलर भी कह रहा है कि यार गलत फहमियां बहुत ज्यादा ने कि जो टॉप लेवल दे बॉडी बिल्डर ने या ओलंपिया लेवल दे ने कि वो कोई हाई ड्रग्स लेंदे ने ते कोई डिफरेंट करल दा जेड़ा स्टाफ लेते ने। And I say that not to sit here and point at myself and say, hey, I'm a model of what, you know, perfect, you know, limitations are. But you know what? I was a volume trainer. I never trained crazy heavy. I ate very, very well. I स्पेशली मिस किथे होंदा है क्या, देखो वॉल्यूम ट्रेनिंग, ठीक है, लाइट वेट लैके माइंड कम्युनिकेशन कराना। माइंड कम्युनिकेशन किस तरह होंदा है, ऑटोमैटिकली ताड़ा जेड़ा लाइट वेट लैके ताड़े माइंड कम्युनिकेशन होंदा है, इंटेंसिटी क्रिएट होंदी है, ठीक है, बॉडी दे विच। ते फिर जेड़ा रैप भी घट हो जांदे ने, सैट भी ताड़े घट हो जांदे ने, ते टाइम भी घट जांदा है। ते अगर तुसी हैवी लिफ्ट करो ते चुक्किया रखिया फिर लगे, फिर तुसी भावें 4-4 घंटे ट्रेनिंग करो। The way guys are, you know, taking steroids and whatever else that are made in people's basements, it's dangerous. It's very, very dangerous. And I think they don't even know what they're taking half the time because they're reading on the internet, take this, take that, you know, do this, do that. And they're not using doctors to bounce. Especially जेडे believer है ने कि मैं डाइट पढ़ी उतो इंटरनेट तो रीड की है, कोई कहता मैं यूट्यूब तो देखा कि इंज इंज होना चाहिए, ए वाला टीका उन्हें लाया वो इंज किया, ठीक है। और स्पेशली फूड बना रहे होंगे ने, वो एक ब्लॉग बना रहे होंगे ने, कोई सारा दिन अपनी जड़ा ना चीज़ां किवें मेनटेन लैके करते हैं, अपने मील किवें प्रिपेयर करते हैं, वो सिर्फ उहदे विच वो दिखा रहे होंगे ने। ते स्पेशली कोई भी बॉडी बिल्डर जो है ऑनेस्टली अमेरिका के अंदर स्पेशली, ठीक है, कोई ओपनली नहीं कहता कि मैं ड्रग्स यूज करता हूँ। यहाँ पे मैक्सिमम जो है ना कम से कम जो है 5 साल कैद है अगर आप विद ड्रग्स पकड़े जाते हो, ठीक है। और कोई बंदा आके जो है इंटरनेट पे नहीं कहता कि मैं ये चीजें ले रहा हूँ। हाँ, कुछ लोग हैं उनको सजाएं भी होती हैं, वो हैवी फाइन पे करके बाहर आ जाते हैं, वो डिफरेंट स्टोरी है, ठीक है। तो ओपनली जैसे 5% था रिच पे आना, वो करता था इस तरह, ठीक है, वो फाइन पे करता था, वापस आ जाता था, ठीक है। ओपनली कोई नहीं है। ये कुछ हैकर होते हैं या अपनी वेबसाइट को बूस्ट करने के लिए, या जैसे पिछले दिनों में हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है वो न्यूज वाले हैं, वो बॉडी बिल्डिंग को ज्यादा कवर कर रहे हैं, यानी कि मीडिया अपनी तरफ लेके आ रहे हैं कि अट्रैक्शन ले, रेटिंग बढ़े उनकी चैनल की, ठीक है, और बॉडी बिल्डिंग को भी आगे फरोग मिले। और स्पेशली ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि 7 किलो बीफ, एक साहब ने बोला था 7 किलो बीफ और 6 दर्जन अंडे, ठीक है, और उसके बाद जो है शहद और 2 बॉल सलाद के, और उसके बाद जो है मटन और चिकन भी उसमें शामिल था, ठीक है। बट एवर ओवर ईटिंग इज डेंजरस है। बॉडी बिल्डिंग जो है बड़ी इजी है, ठीक है, डिसिप्लिन होना चाहिए और क्रेज होना चाहिए और समझ से ट्रेनिंग करो, ठीक है, आराम से, सुकून से। और जो है अल्लाह पाक ने हर चीज के अंदर नेमत रखी है, जिस्म को हर चीज की जरूरत है। कोई ऐसी चीज अल्लाह पाक ने नहीं बनाई
कि जिसके अंदर जो है वो इस तरह की कह ले के खासियत questions off of, and nothing's really legit, and that's the biggest concern in the health aspect, and I think that's what's going to affect people later in their decisions they made now in the future. बाद जो तुसी हुन जेडे बिगनर है ने स्पेशली सोच समझ के अपना डिसीजन लीजिएगा। जो भी आप करने लगे हैं स्पेशलिस्ट से पूछें कि मैं ये चीज यूज करूं या ना करूं। करना है तो स्पेशल किसी डॉक्टर की, या डॉक्टर नहीं तो कोई ट्रेनर जो स्पेशल हो, यानी कि ट्रेनर स्पेशल से मुराद जो है जो प्रोफेशनल हो, जिसने स्टेज को देखा हो, जिसने एक्सपेरिमेंट खुद पे किया हो। पाकिस्तान में ठीक है हम लोग जो है बुरा समझते हैं डॉक्टर के पास जाना, बुरा समझते हैं साइकेट्रिस्ट के पास जाना कि पता नहीं मैं पागल हो गया। ये लोग इस वास्ते बैठे नहीं कि ना को जाओ ताड़ी हेल्प करन दे। I mean, we get asked this question a lot, you know, from people who are not actually competitors, right? Because, you know, bodybuilding, a lot of people say it's kind of like a cult, right? And you have that dark shadow over it, that dark cloud. And a lot of it is misconstrued, you know, it's not understood from the average Joe. You know, they ask, when you try to defend it, they always ask you the simple stuff. So, is it healthy? Is bodybuilding healthy? I think bodybuilding is healthy to a certain point, but I mean, if you really look at the aspect of like if you go on stage and compete at the Mr. Olympia and you dehydrate yourself, you go to the hospital, they do a test, and your kidneys are in renal failure. Is that healthy? Is it healthy not to drink water for 12 hours? No, it's not healthy. But we can argue everything in life, like. स्पेशली प्रोफेशनल ते नॉन प्रोफेशनल, ठीक है है कि असी हर चीज ते आर्ग्यू कर सकते हैं। जिवें कि मैं वीडियो बना रहे हैं, कुछ लोग जेडे ने इहदे ते भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि यार नहीं है जेडे भाई ने ए वीडियो सही नहीं बनी या मैनू समझ नहीं आ रही। तो बॉडी बिल्डिंग इज हेल्थी स्पोर्ट है बहुत ज्यादा, पर अगर तुसी एक लिमिट क्रॉस कर जाते हो किसी भी चीज की, ठीक है, और डेंजरस बन जाएगी ताड़े ऐसे। You know, you get in a car and you drive in New York City and there's a million cars and you're rolling your windows down, you're breathing, you know, carbon monoxide or whatever. Is that healthy? You know, is going out and getting drunk on a Tuesday night every Tuesday because you meet your buddies at the pub, is that healthy? I mean, it really comes down to, you know, we look healthy, but I think every person, remember, every day we look healthy, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਚ ਤੇ ਹੈਲਦੀ ਲੱਗਨੇ ਆ ਪਰ ਸਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਵਰੀ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੀ ਤਰਫ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਗਰ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਏ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਸਟੀਰੋਇਡ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਟੀਕੇ ਲਾਂਦਾ ਸੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ठीक है। हर बंदा जिहड़ा ना उन्हें मरना है, कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ठीक है। एक दिन साडी तहलीक ही इस तरह की हुई है कि असी बच्चा बड़ा होंदा है, ठीक है, जवान होंदा है, फिर उस बाद टलना शुरू हो जाता है, ठीक है। हर बंदे ने वापस जाना ही जाना है, ठीक है। हुण अगले लफ्ज़ सुनो। Forward is one day closer to dying, right? So we just don't know when our time actually is. We try to do everything we can to, you know, look as great as we can, enjoy ourselves as much as we can before that day comes. So I don't know what's healthy these days. I can tell you that I thought bodybuilding, I thought I was doing it the right way. I never had any health scares in that sense, any serious health scares. Of course, I've had injuries and I've had sicknesses or whatever else, but it never was really like, okay, you're beating your body down, stop doing this. इसी तरह नहीं है, ठीक है, बाकी लिमिट में रह के करें, एंजॉय करें अपनी लाइफ को, इतना ज्यादा क्रेजी ना ले लें और अच्छे इंसान बने। स्पेशली जिस्म तो अच्छा बन जाता है, ठीक है, अगर आपकी आदत अच्छी नहीं है, ठीक है, आपका इखलाक अच्छा नहीं है, आपको तमीज नहीं है किसी से बात करने की, तो ये आपकी अच्छे लुक, अच्छे कपड़े जो है किसी काम के नहीं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।